اور میں نے اپنے رب کو بے شک شارک سے بھی زیادہ قریب پایا، اور ہم سب اپنے رب کو اتنا ہی قریب محسوس کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ انسان کے اس حد تک قریب ہیں کہ کسی اور وجود کا تصور بھی نہیں، کہ انسان کے اس حد تک قریب اس کا رب موجود ہے اور وہ ادھر ادھر کے دھکے کھاتا پھرے۔ یہ انسان کی بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں۔ ہر انسان انڈیویجولی اس حد تک اسٹرانگ ہے کہ وہ اپنی ول پاور یوز کر کے بہت سارے ایسے کام کر سکتا ہے جو وہ ناممکن لسٹ میں اس نے ڈال دیا ہے، اور جب ناممکن نہیں ہوتا تو وہ تھریش باکس کے اندر چلا جاتا ہے، یعنی اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، کہ کیونکہ جب ڈیلیٹ کسی چیز کو کیا جاتا ہے تو پھر وہ ایک کسک بن کے زندگی کو سپوائل کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ جو اچھی چیزیں ہیں ان کا حصول تو بہت ضروری ہے اور اس کے لیے جد و جہد بھی کرنی چاہیے، پر فضول کی خواہشات پالنا آپ کی اس پریزنٹ جو نعمتیں رب نے دی ہیں اس کی شکر گزاری کو کم کر دیتی ہیں، اور انسان نہ شکرا بےحد نہ شکرا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ میں انسان کے گمان جیسا ہوں، جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں بالکل ویسا ہوں، اور جب وہ میرا ذکر محفل میں مجلس میں کرتا ہے تو میں اس کا ذکر اس سے بھی خوبصورت محفل اور مجلس میں کرتا ہوں، اور وہ مجلس پتہ کون سی ہے؟ وہ فرشتوں کی مجلس ہے، اس میں رب ہمارا ذکر کرتا ہے۔ تو جب اتنا خوبصورت اتنا پیارا رب ہمارا دوست بن جائے تو ہم سوچے کیا نہیں کر سکتے۔ میری پیاری اسلام کی بہنوں، پیاری شہزادیوں، آپ اللہ کے دوست بن سکتے ہیں، اللہ آپ کا دوست بن سکتا ہے، مگر انحصار یہ منحصر اس چیز پر ہے کہ کیا آپ دوست بنانا چاہتے ہیں اس کو؟ کیا آپ نے اس کو اتنا امپورٹنٹ رکھا ہوا ہے اپنے رب کو، اپنے اللہ کو، کہ وہ آپ کا دوست بن جائے؟ اس کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا، کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ جس کا ٹوٹا گھر ہے، جس کا ٹوٹا کمرہ ہے، جس کا ٹوٹا بیڈ ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ بھی اپنے رب کو پا سکتا ہے، اور جس کے پاس محل ہے وہ بھی اس کو اپنے رب کو پا سکتا ہے، اور جن کے پاس یہ کچھ بھی نہیں ہے وہ بھی پا سکتا ہے۔ اللہ ہر ایک کا دوست بن سکتا ہے، خواہ وہ صحرا میں خواہ وہ محل میں۔ اللہ کو پانا کسی بھی کوئی امتیاز اللہ کو پانے میں کوئی اس کا دائرہ نہیں ہے، کوئی اس کی سٹینڈرڈ نہیں ہے، بس اس کا سٹینڈرڈ صرف یہی ہے کہ جو جتنی محبت کر لے اللہ اسی کا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ کیسے آپ کا دوست بنتا ہے۔ اللہ کو تنہائیوں میں پا کر دیکھیں، اور وہ تنہائی ہمیں آج کل کی اتنی مصروف اور اتنی شور اور غل والی زندگی میں صرف رات میں میسر ہوتی ہے کہ ہم رات میں اپنے رب کو پا سکیں، کیونکہ رات میں ہم اپنے رب کے ساتھ بہت سا ٹائم ایسا ہے جو اپنے رب کے ساتھ ہم گزار سکتے ہیں۔ رات میں ہمیں کوئی بھی مصروفیت نہیں ہوتی، اس کے برعکس دن کے، یعنی دن میں ہمارے لیے مصروفیت ہوتی ہے، اور رات میں اگر ہم آدھا گھنٹہ بھی، میں کہتی ہوں نہیں آپ گھنٹہ دے سکتے، آپ آدھا گھنٹہ، کیونکہ ہاف این آور یہ ہو جاتا ہے نا کہ آپ اٹھتے ہیں، پہلے آپ نہیں وضو کا دل کرتا تو آپ نہ کیجیے، آپ بیٹھیں ہیں ایک دفعہ اٹھیں، سوچیں کہ آج سے میں نے ذرا اٹھنا ہے، تو آپ اٹھیں اور کہیں کہ اللہ تعالیٰ میں آج اٹھا ہوں یا اٹھی ہوں، کیونکہ میرے یہ مقاصد ہیں جو میں نے، ایک تو میں آپ کے ساتھ دوستی بھی کرنا چاہتا ہوں یا کرنا چاہتی ہوں، اور پھر میں آپ سے اپنی وہ چیزیں بھی پالوں گا جو میں مانگنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں۔ تو پھر جب آپ، اور اگر آپ کا دل کرے گا، کیونکہ انسان ایز
कहते हैं ना, बीइंग ए मुस्लिम हम थोड़ा सा शर्म भी तो फील करते हैं ना कि हम चलो फिर वज़ू ही कर लें। तो फिर वज़ू अगर आपका आप ईज़ी हैं, कंफर्ट लेवल में हैं, तो आप वज़ू करें। और फिर अगर आप उससे ज़्यादा अच्छा फ़ील करना चाहते हैं तो आप 2 नफ़ल पढ़ लें। ये कोई मुश्किल काम नहीं है सच्ची। जब आप उठ जाते हैं ना तो आपका दिल करता है, क्योंकि इंसान के अंदर एक अर्ज होती है कि मैं ज़रा चलो अब तो मैं उठ ही गया हूँ तो चलो नफ़ल या सब पढ़ लूँ 2। फिर इंसान उस टाइम में ना, इंसान के ऊपर बुराई बहुत कम गालिब आ रही होती है। शैतान का बहुत कम गलबा होता है जब उठना चाह रहा होता है इरादा, मगर जब इंसान उठ जाता है और नमाज मतलब उठ के वज़ू कर लिया तो फिर बहुत कम होता है गलबा, दिन में ज़्यादा होता है। अगर रात में आप कुछ नहीं कर रहे और लेटे हुए हैं तो फिर गलबा ज़्यादा होगा, मगर जब आप उठ जाते हैं ना फिर वो आपको कम गलबा आता है शैतान का। तो इसलिए जब आप वज़ू कर लेते हैं, आप 2 नफ़ल पढ़ लेते हैं ना और फिर आप अल्लाह से बात करना स्टार्ट करते हैं, तो यकीन करें कि वो पहले दिन आपको कोई एकदम नहीं लगेगा कि हाँ ये हो गया, मगर सुकून आपको उसी वक्त फ़ील होने लग जाएगा। आप अल्लाह से कह कर देखें, आप सिर्फ़ एक बात करें, सबसे पहले जब आपने स्टार्ट करना है, आप पहले दिन उठे हैं, आपने कोई स्पेशल कुछ नहीं आप करना चाहते, कुछ ना करें आप, बस सिर्फ़ सोए हैं, आप उठें। अगर इवन कि आप नहीं सो रहे और आपको 1 बज गए, तो आप सोए बगैर भी अपनी तहज्जुद पढ़ें। मत सोचें कि आप उठेंगे तो फिर दोबारा पढ़ेंगे, फिर आप उठ नहीं पाएँगे। पहले आपको तहज्जुद का आदी इस तरह करना होगा कि आप पहले सोए बगैर, जिस तरह मुझे पता है आजकल हर कोई थोड़ा लेट सोता है, और अगर वो लेट सोया तो फिर वो तहज्जुद के लिए कैसे उठेगा? तो आप एक दफ़ा उसे अपनी प्रायोरिटी में शामिल तो करें ना, कि अब देखिए, अब आप जाग रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, मीडिया देख रहे हैं, यूट्यूब व्हाटएवर, तो आप कुछ भी करें। अब आप रात को 1 बज गया है या आपको 2 बज गए हैं, तो आप क्या करें कि अब आप सोने वाले हैं, तो आप थोड़ा-सा आप जाएँ, वज़ू करें और फिर 2 नफ़ल पढ़ लें। क्या होगा इससे? बज़ाहिर तो कुछ नहीं होगा, मगर हाँ, आपके और अल्लाह के दरमियान बहुत कुछ हो जाएगा। आपने अल्लाह की तरफ वो पहला कदम बढ़ा दिया, जो मुत्तकियों का जो मुत्तकियों लोगों की लिस्ट में आपको शामिल कर सकता है अनकरीब इंशाल्लाह। और ये जो वो लोगों का वतीरा है जो मुत्तकी हैं, जो अल्लाह के दोस्त बनने का ख्वाहिशमंद है, जो अल्लाह के दोस्त बन जाते हैं। अल्लाह के दोस्त आप एकदम से भी बन सकते हैं और स्लो स्लो भी बन सकते हैं। अल्लाह को वही अमल पसंद है जो मुसलसल हो, चाहे थोड़ा हो। तो आपने क्या करना है कि आपने आराम से नफ़ल पढ़नी है और फिर आपने अल्लाह को कहना है, अल्लाह जो मैंने आज नमाज़ पढ़ी है ना, अभी मेरा इसमें दिल कुछ भी, चाहे मैं हाज़िर नहीं हूँ, मैंने बड़ी मुश्किल से, बड़ी मजबूरी से पढ़ी है कि अब मैं उठी हूँ तो मैं फिर कुछ पढ़ लूँ, क्योंकि मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि अगर मैं 1 बजे सो रही हूँ या 2 बजे सो रही हूँ तो फिर अब मैं बगैर तहज्जुद पढ़े अगर मैं सो रही हूँ तो चले मैंने पढ़ ली है। तो प्लीज़ आप मुझे मेरी आदत में ये शामिल कर दें, मैं ये नमाज़ पढ़ना चाहती हूँ। तो देखिएगा कि अल्लाह ताला ख़ुद आपको जगाएगा, ख़ुद आपकी वो आदत बना देगा। आप उस टाइम अल्लाह से आहिस्ता-आहिस्ता बातें करना, पहले दिन तो आपने पढ़ ली, फिर दूसरे दिन आप फिर वही करें, फिर आप उसके बाद सोया करें। खुद ब खुद आपको होगा कि आपकी रूटीन बनने लग जाएगी। चले 1 हफ़्ता नहीं भी बन रही, आप लेट सोना पसंद करते हैं, आहिस्ता-आहिस्ता आपको आपकी ज़िंदगी से वो बुराइयाँ ख़त्म होती जाएँगी जो आप पहले बड़े मज़े से किया करते थे। क्योंकि अल्लाह ताला जहाँ पर अल्लाह की मोहब्बत आ जाती है ना, वहाँ बाकी सारी चीज़ें खोखली होनी शुरू हो जाती हैं। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, बेशक इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह की मोहब्बत के लिए सिर्फ़ 1 कदम मुश्किल है, 10 कदम वो खुद बढ़ा देता है, तो आप फिर वो जो कनेक्शन बिल्ड होता है ना, उसके दरमियान कोई तीसरा नहीं होता, फिर आप और आपका रब होता है। और ये इतना खूबसूरत रिश्ता है कि मैं आपको लफ्ज़ों में नहीं बता सकती, क्योंकि इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी ने वफ़ा की तो मैं आपको वो सारी स्टोरीज़ बताऊँगी जो मैंने खुद जी है और जिनसे मैं खुद गुज़री हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हर कोई वो रिश्ता बना ले रब से,
जो बड़ी एज में जाकर तो हर कोई अल्लाह से रिश्ता बना लेता है, मगर जो ये जवानी की फ्रेंडशिप होती है, अल्लाह से दोस्ती होती है, ये बहुत खूबसूरत है। इसका चार्म ही अलग है, इसकी लज़्ज़त ही अलग है, इसकी स्ट्रॉन्गनेस, इसकी पावर ही अलग है। आप सोच भी नहीं सकते आप अल्लाह से क्या-क्या अल्लाह से लाड में करवा सकते हैं। अल्लाह वो काम आपके लिए कर देता है इतनी आसानी से कि इंसान की वहाँ तक सोच ही नहीं जा सकती कि वो किसी इंसान के थ्रू, किसी पैसे के थ्रू वो काम करवा ले। अल्लाह की फ़ौज है, अल्लाह की फ़ौज, अल्लाह की आर्मी इतनी खूबसूरत, वो फ़रिश्तों की, जिसके ज़रिए जो नज़र आए बगैर हमारे लिए वो काम कर देते हैं, जो अल्लाह उनको हुक्म देता है, जो अल्लाह अपने दोस्तों के लिए, जो अल्लाह के दोस्त बन जाते हैं, अल्लाह उनके लिए वो काम अपनी उस आर्मी से, उस फ़ौज से करवाता है। तो अगर हम क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं बन सकते, हमें कौन सी चीज़ें रोकती हैं? हमें दूसरों के सामने अपने दुख रखने आ जाते हैं, हमें दूसरों के सामने ख़ुद को कमज़ोर फ़ील करवाना आ जाता है, दूसरों के 2-3 संपत्ति वर्ड्स जो हमारे साथ करते हैं, जो कोई हमदर्दी के 2 लफ्ज़। आजकल कितना बंदा उसके एक बार दुख बता दो किसी को तो आप शर्मिंदा होते रहते हैं उसके बाद उससे। अगर आप अल्लाह के सामने हर वो गुनाह भी रख देंगे ना जो आपने तन्हाइयों में किए हैं, तो यकीन मानिए आपको उसके बाद उस चीज़ का इकरार अपने रब के सामने करने से आप इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि फिर आपको अल्लाह ताला किसी और ही रंग में रंग देता है, जो कि सिबगतुल्लाह है, अल्लाह के रंग है। और अल्लाह के रंग सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत है। आप एक कदम अल्लाह की तरफ बढ़ा कर देखिए, अल्लाह को सिर्फ़ ये कहिए कि अल्लाह आप मेरे दोस्त हैं, मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ मुझसे दोस्ती कर लें। मैं सिर्फ़ आपकी दोस्ती में आना चाहती हूँ, मैं आपको दोस्त बनाना चाहती हूँ, मैं आपको हर वो बात बताना चाहती हूँ, चाहे वो बातें आपने अल्लाह से पहले भी की हों। मगर जब आप अल्लाह के साथ तहज्जुद में रिश्ता कायम करने के लिए आपका डे 1 नाइट है, मतलब फर्स्ट नाइट है अल्लाह के साथ आपकी, तो फिर आप ज़रूर कहिए कि अल्लाह आज से मेरा सफ़र आपके साथ दोस्ती का स्टार्ट हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ मैं हर चीज़ आपके साथ शेयर करूँ, हर वो चीज़ जो मैंने अल्लाह से तो कुछ छुपा नहीं है, मगर आप लाड में हर बात बताइए, अल्लाह मैं आपको हर चीज़ बताना चाहती हूँ। उसके बाद फिर करते करते आप अल्लाह को वो बातें बतानी शुरू करें जो आपने अपनी उस पोटरी में बना डाली हुई हैं, जो आपकी डिज़ायर लिस्ट है, डिज़ायर पोटली आपने बनाई है, उसमें से एक-एक करके बताएं, अल्लाह ये है, अल्लाह मैं ये बाहर जाना चाहती हूँ, अल्लाह मैं फ़र्स्ट आना चाहती हूँ, अल्लाह मैं ये मोबाइल लेना चाहती हूँ, या अल्लाह मैं अपनी बेटी या बेटे की लिए बेहतरीन रिश्ता चाहती हूँ, अल्लाह मैं अपने लिए अच्छा हमसफ़र चाहती हूँ, अल्लाह मैं घर लेना चाहती हूँ, अल्लाह मैं सेफ़ लेना चाहती हूँ, या अल्लाह मैं कुछ भी लेना चाहती हूँ, सूट, कपड़े, मतलब इंसान की दुनियावी ख्वाहिशें ही होगी ना, वो पहले शुरू में आकर अपना दीन या वो चीज़ें तो नहीं मांगेगा ना, शुरू में तो वो वही चीज़ें मांगेगा, इंसान लालची तो है ही, वो चीज़ें ही मांगेगा और उसी से वो अपना स्टार्टअप लेगा। तो आप लें, अल्लाह ने तो कहा है मुझसे मांगो, मैं तुम्हें हर वो चीज़ दूँगा जो तुम्हें खुश करती है, मगर तुम भी तो वो कुछ करो जो अल्लाह को खुश करता है, वो है अल्लाह की तरफ वो पहला कदम और अल्लाह का रंग, जो अगर इंसान पे चढ़ जाए तो फिर कोई और रंग उसके ऊपर जचता ही नहीं है। फिर सब ये कहते हैं वो अल्लाह का दोस्त है, वो देखो अल्लाह के दोस्त ऐसे होते हैं। हमें सिर्फ ये दुआ करनी चाहिए कि कोई हमें देखकर ये ज़रूर कहे कि ये अल्लाह का दोस्त है। अल्लाह के दोस्तों की शक्लें ऐसी होती हैं, कितनी खूबसूरत बात है कि कोई हमारे देखने से, हमें देखने से कहे कि ये अल्लाह का दोस्त है। ये बनना कोई आसान, कोई मुश्किल नहीं है। ये कोई बहुत बड़े स्कॉलर या बहुत बदकार या नेकोकार, ये दोनों ही ये बन सकते हैं, अल्लाह के दोस्त बन सकते हैं। सिर्फ अपने दायरों से निकलना पड़ता है। हर कोई अल्लाह का दोस्त बन सकता है, और जो अल्लाह का दोस्त बन जाए
तो फिर यकीन माने कोई बड़ी से बड़ी बीमारी है, कुछ बड़ी से बड़ी ख्वाहिश है, वो कुछ भी नहीं ऐसी जो आपकी कसक बन जाए। आपकी वजह से, आपकी बरकतों से, आपके साथ जुड़े हुए लोगों पे भी इतना अल्लाह ताला अपनी रहमत का नुज़ूल करता है कि इंसान खुद हैरान हो जाता है। तो मेरी इस्लाम की शहज़ादियों, मेरी प्यारी बहनों, सिर्फ़ अल्लाह को दोस्त बना लो। सिर्फ़ एक बार उठो, तहज्जुद पढ़ो, अल्लाह के साथ बात करो। तहज्जुद मैं सिर्फ़ इसलिए भी कह रही हूँ या कहती हूँ क्योंकि तहज्जुद वो नमाज़ है कि जो आप सिर्फ़ अल्लाह के लिए ख़ुद से उठकर पढ़ते हैं और उसमें आप अपनी ही ख्वाहिशों की वजह से उठकर उस तक गए होते हैं। तो अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमतों का नुज़ूल करे और हमें अपने रंग में रंग दे, जो बहुत खूबसूरत रंग है अल्लाह का, सिबगातुल्लाह। और अल्लाह हमें अपने दोस्तों की लिस्ट में शामिल करे। आमीन या रब्बुल आलमीन।